Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा Let's crack it जोर दे लगा Let's crack it भीड़ को छोड़ दे Let's crack it रास्ते मोड़ दे Let's crack it चल उठ जा Let's crack it जोर दे लगा Let's crack it भीड़ को छोड़ दे Let's crack it रास्ते मोड़ दे Let's crack it जोर दे लगा Let's crack it भीड़ को छोड़ दे. Hi guys, welcome back to the next lesson in my course on previous year questions. And as you know, we are discussing the previous year questions from the CAT 2017 paper in this series of lessons. I'm doing questions from slot 1, and currently we are focusing on arithmetic. And these group of sessions are also built around not just previous year lessons and questions, but also around a decision about this kind of strategy you need to create or you need to implement if you are trying to look at developing your preparation for CAT or organizing your preparation for CAT. And the previous year questions and the difficulty level of those questions should be looked at closely, because that kind of gives you an insight into what kind of depth of preparation you need to go. तुमको ये पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कि कितना डेप्थ में जाना है मेरे को प्रिपरेशन के, कितना डीप जाना है प्रिपरेशन के, और कितना मेरा करंट प्रिपरेशन लेवल उस क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट से के कॉन्टेक्स्ट में सही है कि नहीं, ये तुमको दिखाता है. तो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ द सेशन फॉर टुडे, मैं आपको आज का अपना प्रोमो कोड का याद दिला दूँ. मेरा प्रोमो कोड अनअकैडमी प्लस के लिए arun.yt है, और इस प्रोमो कोड से यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन फॉर CAT. You can also use it for subscription for other things, although obviously those of you who are watching my sessions would mostly be interested in the CAT exam. तो ये प्रोमो कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके एग्जिस्टिंग फीस पे, और इस प्रोमो कोड से आप मतलब यू विल गेट एक्सेस टू माय करंट रनिंग कोर्सेज एंड माय अपकमिंग कोर्सेज बोथ. सो मेरा करंट रनिंग कोर्स ये वाला है, लॉजिकल रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स ऑन LR. This is my currently running course, and the upcoming course 15 जून से स्टार्ट हो रहा है. ये कोर्स में करीब चार सेशन भी हुए हैं. So even if you join now, you can do the previous sessions through video and catch up. And the other course which is running from my side is coming up from my side is DI Advanced Course on Data Interpretation, जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है. और इसके अलावा मेरे अपकमिंग कोर्सेज जो हैं जो जुलाई अगस्त में लॉन्च होंगे. फिर एक एडवांस कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग आएगा, 200 मस्ट डू क्वेश्चन ऑन QA आएगा, जैट स्पेशल कोर्स एक आएगा जो जैट के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, IFT स्पेशल कोर्स आएगा जहाँ पे IFT के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग. ऑल दिस एंड मच मोर कमिंग अप ऑन अनअकैडमी प्लस फ्रॉम माई साइड, एंड यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू other teachers. When you join Unacademy Plus, you don't just restrict yourself to one teacher. You get access to all the 30-40 odd teachers who teach on Unacademy Plus under the CAT subscription, and you can do any course and any content from any of the teachers there, right? So with that, मैं पहला क्वेश्चन के लिए पे आपको ले जाता हूँ. आज का पहला क्वेश्चन ये है, ये तो कल किया था हम लोग ने, ये आज का पहला क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन को करने में आई गिव यू अराउंड 2 minutes. आई गिव यू अ टाइम्ड पीरियड ऑफ 2 minutes टू डू दिस क्वेश्चन. और इसको हम लोग फर्स्ट विल टेक दिस एज अ मॉक टेस्ट. you solve the question yourself in a 2-minute time frame, and then we will look at couple of more questions, and then we will come out and look at the solutions. 3 क्वेश्चन का विंडो बनाएंगे हम लोग, and I think this should be easy for you because this is not very tough. तो शायद मैं 1.5 मिनट में ही आप लोग को इसको रोक दूं. और अगर आप इस वीडियो का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको 2 मिनट चाहिए, तो आप टाइमर देख के कर सकते हो उसको. So just try to solve this first. One minute is up now.
So 1 minute 30 seconds done. फाइन. सो आई होप यू एबल टू गेट दिस क्वेश्चन. चलो इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे. अदरवाइज यूल हैव 5-6 मिनट्स जस्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो इसको एक एक करके करते हैं. और अगर मैं तुमसे ये बोलूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तुम किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन देखते हो तो तुमको ये एनालाइज करना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तुमको कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ये जैसे ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज चैप्टर का है, और अगर किसी भी टीचर से पूछोगे तो ही टेल यू कि अगर कोई भी स्टूडेंट परसेंटेज चैप्टर का करीब 200 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है अच्छे से, 200 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए. और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूँगा आप लोग को कि जब आप किसी भी चैप्टर में घुसते हो, लुक एट एनी चैप्टर एज अ बॉक्स, एंड दिस बॉक्स एप्टीट्यूड का चैप्टर है, तो दिस बॉक्स, if you don't know this chapter, this box is completely red. ये पूरा लाल है ये बॉक्स इसके अंदर. और जैसे जैसे आप इस चैप्टर, किसी भी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करते हैं, तो वो चैप्टर आपका, कुछ कंपोनेंट उस चैप्टर का आपका ग्रीन होने लगता है, और बाकी कंपोनेंट उस चैप्टर के आपके अभी भी लाल होता है. तो आपका बेसिक टारगेट एसेंशली ये है कि व्हेन यू स्टडी ए चैप्टर, आपका बेसिक टारगेट एसेंशली ये है कि ग्रीन एरिया को मैक्सिमाइज करना है. और दूसरा टारगेट ये होता है कि जितना पार्ट ग्रीन हो गया उस लेवल का कुछ क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे सॉल्व होना चाहिए, राइट. सो नॉट एट दिस लेवल, लेकिन जब आप करीब 40-50% तक ग्रीन पे चले जाते हैं किसी चैप्टर में, तो आपका पर्सपेक्टिव डबल हो जाता है. नॉट जस्ट कि मेरे को ग्रीन कंप्लीट करना है पूरा, बट ऑल्सो कि अगर इस लेवल पे कुछ आए, इस लेवल पे कुछ आए तो आपसे वो हो जाना चाहिए. एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज दिस क्वेश्चन रिमाइंड मी टू टेल यू दैट. और मैं समटाइम्स रिपीटेडली ये बताता हूँ एट द पॉइंट ऑफ साउंडिंग रिपीटेटिव कि आप जब अपना प्रिपरेशन करते हो, तो किसी भी चैप्टर में जब आप तैयारी करते हो, तो आप एक लेवल जब रीच करते हो, तो आप उस लेवल तक जहाँ पहुँच गए वहाँ के क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है एग्जाम में आप क्या कर पाइएगा. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन, अगर मेरे को किसी स्टूडेंट को गाइड करना है कि तुमसे ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं एग्जाम में, या तुम इस क्वेश्चन को करो एग्जाम में, सपोज मैं इस नए बच्चे को गाइड कर रहा हूँ और मेरे को परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ, तो एज अ टीचर मुझे पता है कि अगर मैं इसको 200-250 क्वेश्चन का एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2 और 3 का मिला के क्वेश्चन बैंक दे दूँ, तो अगर वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 को अच्छे से कर ले, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा, अगर अच्छे से कर ले उसको, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये सवाल उससे हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सवाल LOD 1 के ऊपर कुछ नहीं है. तो उसी तरह से अगर आप हर क्वेश्चन का एनालाइज करो, तो आपको एक लेवल मिलेगा कि आपको एक आइडिया मिलने लगेगा हर चैप्टर में कि अगर आप 50%, 60% तक कंफर्टेबल हो गए किसी चैप्टर में, तो कितने परसेंट ऑफ द कैट क्वेश्चन उस चैप्टर के आप सॉल्व कर पाते हैं लास्ट 20 ईयर्स के. और जो पिछले 20 साल के पेपर में आपका रफ इंडिकेशन दिख रहा है कि आप कितना परसेंट सॉल्व कर पा रहे हैं, इस साल का कैट भी में भी उतना ही आपको मोर और लेस एक्सपेक्ट आप करिएगा. किसी चैप्टर में थोड़ा कम होगा, किसी चैप्टर में ज़्यादा होगा, लेकिन बैलेंस में वही आएगा. तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब जिस चैप्टर में जा रहे हैं, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं फ्रस्ट्रेट होके कि सर ये वाले क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, मेरा ये पूरा लाल पार्ट जो है मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है चैप्टर. तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि बेटा कंप्लीट करना तो ठीक है, कंप्लीट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे हैं. तो एटलीस्ट आप इतने सवालों से तो जीत गए ना जो आपको नहीं आते थे पहले. और अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं तो आप इतना इंश्योर करिएगा कि जहाँ आप अपने विन्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उनसे अपना बिलीफ क्रिएट करिएगा, रादर देन द क्वेश्चन विच यू हैव लॉस्ट टू, और जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं उन पे फोकस करिएगा, तो हमेशा डिप्रेसिंग लगेगा आपको सिचुएशन. सो आइडिया इज नॉट टू ब्रूड ऑन योर लॉसेस. येस,
The idea is of course to start doing things so that you start winning against these questions also. लेकिन also enjoy these wins. आप 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज लेके उठा के बैठते हो, LOD 2 पे आपसे 10 हुए और 40 नहीं हुए, तो अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं इन 10 को एंजॉय करता कि 10 क्वेश्चन तो कर लिए मैंने. जिस दिन मैं 50 का 50 खुद से कर लूँगा उस दिन मैं रेडी हो जाऊँगा. राइट. सो प्लीज रिमेंबर दिस माइंडसेट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रेटेजिकल माइंडसेट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट इन मैथ्स चैप्टर वाइज. तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डज दिस क्वेश्चन से एंड व्हाट डू वी रिक्वायर टू डू इन दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग को और हम लोग करना क्या है इस क्वेश्चन के साथ, देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज. तो इसमें 3 रास्ते में दिखा सकता हूँ आपको. फर्स्ट मेथड जो इसका है, नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज. में गर्ल्स को मैंने 200 ले लिया और बॉयज को 100 ले लिया. ठीक है. दूसरा मेथड जो है, गर्ल्स को 2x ले लिया, बॉयज को x ले लिया. थर्ड मेथड जो हो सकता है, गर्ल्स को 100x ले लिया, 200x ले लिया, बॉयज को 100x ले लिया. ये तीनों रिएक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट पे. आगे बोलता है 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन. लड़कियों में 30% गर्ल्स को और बॉयज में 45% लोगों को एडमिशन मिला. मतलब 30% ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे अगर आप लगाइएगा तो 60 लड़कियों को एडमिशन मिला है एंड 45% ऑफ द बॉयज, यहाँ पे लगाइएगा तो 45 बॉयज़ को एडमिशन मिला है. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 105 लोग का एडमिशन मिला है. कितने में से? आपका एजम्पशन था कि 300 लोग हैं टोटल. 300 लोग में से 105 लोग का एडमिशन मिला है. आगे क्या करोगे? द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स डू नॉट गेट एडमिशन. कितने परसेंट लोग का एडमिशन नहीं मिला है? तो वो परसेंटेज जो है वो यहाँ पे 195 आउट ऑफ 300, 195 आउट ऑफ 300, जो कि आपको 65% आंसर दे रहा है. एंड हेंस योर आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये आपको इस नंबर से ये सब सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व हो गया. ऑफ कोर्स आप इसमें एल्जेब्रिकली जा सकते थे. 2x अगर आपने लिया तो 30% गर्ल्स को एडमिशन मिला, मतलब 0.6x गर्ल्स को एडमिशन मिला. 45% बॉयज़ को एडमिशन मिला. 30% ऑफ 2x इज 0.6x. 45% बॉयज़ को एडमिशन मिला तो 0.45x को एडमिशन मिला. तो टोटल 1.05x को एडमिशन मिला. कितने में से? टोटल 3x में से. तो कितने को एडमिशन नहीं मिला? क्वेश्चन पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट गेट एडमिशन. तो कितने लोग को एडमिशन नहीं मिला? एडमिशन कितने लोग को नहीं मिला? 1.95x आउट ऑफ 3x, जो कि 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 65% आएगा. तो सेम आंसर आपको इसमें भी आ रहा है. एंड थर्ड मेथड से जाओगे अगर 200x एंड 100x के मेथड से. अगर आपको अलजेब्रा से ही जाना है तो 2x और x के बदले 200x और 100x लिया करिए ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए. बहुत बार काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा आपके कैलकुलेशंस में. तो अगर मैं 200x और 100x के साथ जाता हूँ तो 30% लड़कियों का एडमिशन मिला, मतलब 60x लड़कियों का एडमिशन मिला. 45% बॉयज़ को एडमिशन मिला, मतलब 45x बॉयज़ को एडमिशन मिला. तो कुल मिला के कितने लोग को एडमिशन मिला? 105x को. कितने में से? 300x है. 300x में से 105x को एडमिशन मिला. तो कितने को नहीं मिला? 195x by 300. You can solve this by any of these 3 methods. Of course, I think the best one was just numbers 200, 100 लेके
एंड रियलाइजिंग कि यहाँ पे x अगर लोगे भी तो कैंसिल होगा, एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इसको ट्राई करो, ये थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली. इसको ट्राई करो. I'll give you 2 minutes again for solving this. $45 seconds more for you. ओके, टाइम इज अप. तो इस क्वेश्चन को अगर देखते हो तो क्या क्या करना है इसमें. अ स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट्स ऑफ 3 साइजेस, लार्ज, सुपर एंड जंबो. ठीक है, तो क्या करता है ये शॉप, ये स्टॉल पॉपकॉर्न बेचता है और चिप्स बेचता है और 3 साइज में बेचता है, लार्ज, जंबो एंड स्मॉल. इट सेल्स इन 3 साइजेस. आगे क्या बोल रहे हैं. द नंबर ऑफ लार्ज सुपर एंड जंबो, स्मॉल नहीं है, लार्ज, सुपर एंड जंबो मतलब बड़ा और उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा. 3 साइज में बेच रहा है, लार्ज, सुपर एंड जंबो पॉपकॉर्न एंड लार्ज, सुपर एंड जंबो चिप्स. The number of large, super and jumbo packets in stock are in the ratio 7:17:16 for popcorn. The number of large, super and jumbo packets in stock are 7:17:16 for popcorn. तो ये नंबर आपको पॉपकॉर्न के लिए ये रेशियो 7:17:16 दिया हुआ है पॉपकॉर्न के लिए, एंड 6:15:14 फॉर चिप्स. तो चिप्स के लिए आपको 6:15:14 दिया हुआ है, सेम रेशियो. ठीक है, आगे बोल रहा है. नाउ वन थिंग यू शुड रियलाइज बिफोर आई गो अहेड. ठीक है, इसको आगे पढ़ने के बाद बताते हैं इस बात को. If the total number of popcorn packets in stock is the same as that of chips packets. और ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, और यहाँ पे आपको अपना
मैथमेटिकल रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। जब आपके पास पॉपकॉर्न 7:17:6 से कोई भी रेशियो दिया जब जाता है तो आप उन नंबर्स को 7x, 17x और 16x के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हर रेशियो में एक मल्टीप्लायर होता है जो मल्टीप्लायर आपके रेशियो वैल्यूज़ को एक्चुअल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे उस मल्टीप्लायर को x माना हमने, तो जब मैं चिप्स की बात कर रहा हूँ तो चिप्स में मैं 6x, 15x और 14x नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज अगर वैसा लूँगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लायर सेम है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जो आपको दो अलग अलग रेशियो दिए होते हैं तो द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल रिएक्शन, इसकी दूसरे वाले रेशियो पे तुम दूसरा मल्टीप्लायर यूज़ करोगे। तो 6:15:6, 15y, 14y अगर यूज़ करोगे दूसरे वाले पे, और पहले वाले पे 7x, 17x, 16x यूज़ करोगे, तो ये आपने मान लिया कि इतने लार्ज, सुपर और जंबो चिप्स पैकेट्स हैं आपके पास, और इतने लार्ज, सुपर और जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स हैं आपके पास, 7x, 17x और 16x। अब आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है आपके लिए, द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन स्टॉक इज द सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट्स। तो टोटल पॉपकॉर्न पैकेट्स अगर इसमें से निकालूं मैं तो वो इन तीनों नंबर का सम होगा, और 7x, 17x और 16x का सम जो है वो 40x है। 40x इज द टोटल पॉपकॉर्न पैकेट्स, और टोटल चिप्स पैकेट्स की जब बात करूं तो इनका सम होगा वो 6y, 15y और 14y। तो टोटल चिप्स पैकेट जो है वो 35y होंगे। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करो, क्यों इक्वेट कर रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो बताता है वही फॉलो करना होता है। क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन स्टॉक इज द सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट्स। तो दैट मीन्स ये 40x और 35y सेम होंगे। तो इसका मतलब x/y जो है वो 7/8 होगा, x/y 7/8 होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है क्योंकि x और y को अगर आप एक तरफ ले जाओ, y को x के डिनोमिनेटर में, तो राइट हैंड साइड पे 35/40 आएगा, जिसको आप 7/8 में कन्वर्ट कर सकते हो। और आगे पूछा है नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स, द रेशियो नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड जंबो चिप पैकेट्स। तो जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड जंबो चिप्स पैकेट्स का रेशियो पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? आपको निकालना है 16x अपॉन 14y का रेशियो। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ इस कॉर्नर में अपने बोर्ड को, तो मुझे 16x अपॉन 14y का रेशियो चाहिए। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि x/y 7/8 होता है, तो 16x अपॉन 14y कैन ऑल्सो बी रिटन, अगर मैं 2 से काट दूँ इसको, तो इसको मैं 8x अपॉन 7y भी लिख सकता हूँ। और इसको अगर x/y को 7/8 से रिप्लेस कर दूँ तो मेरा जो आउटकम आ रहा है यहाँ पे, जो फाइनल आउटकम आएगा यहाँ पे, वो आएगा 8/7 इंटू 7/8, जो कि 1/1 है। तो ये 2 स्टेप प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए में कन्वर्ट होके दिख जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। और अगेन इस क्वेश्चन को अगर आप अपने उस एंगल से देखें कि कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए बिफोर यू थिंक दैट यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपको कितने क्वेश्चन देखने पड़ेंगे बिफोर यू लुक एट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन तो रेशियो प्रोपोर्शन का था, और इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो दो रिएक्शंस थे, पहला 7x, 17x और 16x,
और दूसरा जो हम लोग ने इस चीज़ को पढ़ के 6y 15y और 14y किया, ये रिएक्शन तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। ओनली इस स्टेटमेंट को अगर आपको समझना था और इस स्टेटमेंट को अगर आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट x by y, इस क्वेश्चन में तो कुछ रखा हुआ नहीं है। और कोई भी स्टूडेंट जो 200 क्वेश्चन किया हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन पे, उसके लिए दिस विल बी दिस मच विल बी क्वाइट सफिशिएंट टू डू। ठीक है, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। और क्वेश्चन बोल रहा है ना मार्केट, इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, सॉल्व या 1 मिनट टाइम दे देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। करिए स्टार्ट, देख लीजिए क्वेश्चन को पहले, 1 से 1.5 मिनट में दे रहा हूँ आपको। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको इस क्वेश्चन में क्या है कि वो क्वेश्चन बोला है प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। इसमें शायद ऑप्शंस सही नहीं है, मैं आपको जो मैंने टाइपिस्ट ने टाइप करके दिया उसके ऑप्शन सही नहीं है। तो गुड मैंगोज का अगर प्राइस में 2x ले लो तो मीडियम क्वालिटी मैंगोज का प्राइस x हो जाएगा। ये पहले स्टेटमेंट से आता है, क्योंकि प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। A shopkeeper buys 80 kgs good mangoes and 90 kgs medium quality mangoes from the market. तो अगर 80 kgs good mangoes खरीदता है वो और 90 kgs medium quality mangoes खरीदता है, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो 80 kg खरीदने में 2x के प्राइस पे 160x स्पेंड करेगा, और 90 kg x के प्राइस पे अगर वो सेल खरीद रहा है तो 90x कॉस्ट प्राइस होगा उसका। तो कुल मिला के 250x उसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। और बेचते समय वो क्या कर रहा है, बेचते समय एंड देन सेल्स ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही पॉट द गुड वंस। तो गुड वंस उसने 2x पे खरीदा है, उससे 10% लेस पे वो बेचता है पूरा, मतलब 170 किलो मैंगोज वो बेच रहा है, क्योंकि उसने 80 kg खरीदा और 90 kg खरीदा, उसके 170 रुपये kg है, 170 kg मैंगोज है, और पूरे को बेच रहा है 1.8 रुपीज़ में। 1.8 क्यों? बिकॉज गुड क्वालिटी मैंगो से 10% नीचे प्राइस पे बेच रहा है। 2x अगर गुड क्वालिटी मैंगोज का प्राइस है तो 1.8x पे वो बेच रहा है। तो 170 इंटू 1.8x ये 306 देगा आपको। ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, और कॉस्ट प्राइस 250x है, सेलिंग प्राइस 306x है। तो आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 56x। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन 250x इंटू 100। इसको सॉल्व करके आप आंसर 22.4% निकाल सकते हैं। 22.4% इसका आंसर आएगा। एज ए सेड इसके ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन के, तो उनको इग्नोर कर दीजिए आप, एंड दिस विल बी द राइट आंसर।
Right, so that's all for today. Just reminding you about my promo code Unacademy Plus पे join करना है तो मेरे promo code को use करिए arun.yt and would love to have some of you in my classes. अभी के लिए bye bye everybody. Thank you so much. Thank you so much for attending, and my next session will continue more of this The time tomorrow comes in the next class. when we shall And redeem our pledge. goodbye everyone. See you then. India Bye. will awake to life and freedom. चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा